Good morning, everybody. In electrochemistry, today we have to discuss about the application of the Colrath's law. As you already study about the Colrath's law, that in the electrolytic solution, in infinite dilution, the total conductivity of the solution will be the total conductivity of positive and the negative ion. So both the ions separately, they share to conclude the conductivity of the given solution. So in this way, the ions are the very important body to migrate the respective electrodes and to participate in the conductivity of the cell. So it is the Colrath's law. Now, what are the different applications of the Colrath's law? The first application is independent migration. Independent migration of ion. So here it is the meaning. So taking an example of NaCl, instead of the NaCl, we may have a weak electrolyte. You know the NaCl is the strong electrolyte. In the case of the weak electrolyte, say CH3COOH. So in the presence of solvent, it will dissociate into the acetate negative ion and the hydrogen positive ion. So these are the cation, and here it is the anion, right? So acetic acid is a weak acid. So weak acid will dissociate into the acetate and the H positive ion. Now, if we want to know about the activity of these ion, as you know, because both the ions are oppositely charged, दोनों आयन जो है ना वो विपरीत आवेशित हैं. So in the solution, these ions are freely available, but due to the opposite charges, the ions attract each other. So in this way, the reaction may be the reversible. It means again a neutral molecule will form. So it is the barrier so far the ion formation is concerned. So the attraction force between the ions became a barrier for the migration of ion at their respective electrode. तो ये अपने अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो गई उनके मध्य उत्पन्न होने वाले आकर्षण बल के कारण. तो अब इस आकर्षण बल के कारण इनका जो माइग्रेशन है, इनका जो अभिगमन है, वो अब स्लो हो गया, धीमे हो गया. कहने का मतलब ये हुआ. तो अब ये अपने इस अट्रैक्शन फोर्स से मुक्त होकर, आकर्षण बल से मुक्त होकर के, और विद्युत धारा वाला जो बल है हमारा सेल में उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है, अर्थात इलेक्ट्रोड की तरफ से, तो वो जो आकर्षण होता है इलेक्ट्रोड आयन के बीच का आकर्षण, ये स्ट्रांग हो जाता है कंपैरेटिवली आयन आयन अट्रैक्शन से. तो इस प्रकार से ये आयन जो है वो इस अट्रैक्शन फोर्स से स्वतंत्र होकर के और अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं. और जब ये अभिगमन करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो हम सेल की कंडक्टिविटी को मेजर कर पाएंगे. तो सेल की कंडक्टिविटी में इन आयनों का स्वतंत्र अभिगमन एक सहयोग होता है. अब आपसे पूछा जाए कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, at the infinite dilution
इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि ये लैम्डा इन्फिनिटी, इसके लिए हम बताएंगे ये नेगेटिव आयन, ठीक है, माइनस और प्लस ये लैम्डा इन्फिनिटी द पॉजिटिव आयन. So in this way the positive and negative ion at their infinity they will participate to conclude to determine the total molar conductivity of a given solution in the weak electrolyte. So it is the equation by the Kohlrabi law how the ions are contribute in the measurement of the conductivity. Now in this example again, say it is the Na2SO4, a solution of sodium sulfate. So it is the 1 gram equivalent, then it will dissociate into the 2 Na positive and the SO4 2 negative. If the question is write the lambda m of Na2SO4, the lambda m at the infinite dilution of Na2SO4, ठीक है, ये लैम्डा एम है यहाँ. तो अब इस सोडियम सल्फेट के विलयन की जो ये सॉल्यूशन है वो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये हाफ मोल में है. अब इसकी आपको ये हाफ मोल कैसे बना, तो इसमें आपको अगर ये पूछा जाए कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर ये लैम्डा एम ऑफ द Na पॉजिटिव एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस द हाफ. अब यहाँ पे आपको हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि सल्फेट जो आयन है वो Na आयन की कंपैरिजन में आधे हो गए, राइट. सो द हाफ लैम्डा इन्फिनिटी एम द SO4 2 नेगेटिव. इस तरह से आपको ये इक्वेशन बनाना है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि ये गिवन कंपाउंड है, इसकी जो 1 ग्राम तुल्यांक अगर इसका मोल लिया जाए सॉल्यूशन में तो उसमें इस विलयन की जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसको लिखिए. तो आपको ये एक लाइन का आंसर इस प्रकार से लिखना होगा. लेकिन ध्यान रखिए इनकी जो ये मोलरिटी को कंफर्म करने के लिए ये जो आपके कॉफिशिएंट है स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये पहला हुआ. अब देखिए कि दुर्बल जो हमारे विद्युत अपघट है, जैसा हमारा एसिटिक एसिड था, तो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मेजरमेंट है एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी का जो मेजरमेंट है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. कारण क्या हुआ कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इन आयनों की संख्या तुलनात्मक बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है. और जब संख्या कम हो जाएगी तो उस स्थिति में हमारा जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयन है वो अब हमारा लगभग नेग्लिजिबल स्थिति में आ जाता है. तो फिर इस स्थिति में उस सेल का जो कंडक्टेंस है, उसकी चालकता है, उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी मेजरमेंट करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है. लेकिन कोलराबी की सहायता से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइटों की जो कंडक्टिविटी है, उनका कंडक्टेंस है, उनका मेजरमेंट इस कोलराबी के नियम के आधार पर कर सकते हैं. अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए. एग्जाम्पल हमारे सामने ये है, आपसे कहा जाए कि आप एसिटिक एसिड की आपको लैम्डा एम की कैलकुलेशन करनी है एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन MCH3COOH, ठीक है. ये हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये फाइंड आउट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो अगर हम इसको डिटरमाइन करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेट प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक वैकल्पिक तरीका अपनाना पड़ेगा. वो वैकल्पिक तरीका क्या होगा कि इन्हीं आयनों से युक्त
आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम एच आयन की बात करते हैं तो ये जो एच आयन है ये हमें HCl से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो एच आयनों की मोलर कंडक्टिविटी HCl के सॉल्यूशन से आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी में जो हमारा ये आयनाइजेशन है वो CH3COO नेगेटिव और प्लस ये H पॉजिटिव इसमें होता है। तो इस H पॉजिटिव की जब लैम्डा एफ इन्फिनाइट निकालेंगे तो वो HCl के माध्यम से निकलेगी। तो हमें सॉल्यूशन तो इसका बनाया, लेकिन हमें दूसरे सॉल्यूशन एक अल्टरनेट प्रोसीजर रखते हुए हमें उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो HCl से हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे ये H प्लस और Cl आयन देगा, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बड़ी आसानी से H आयन उपलब्ध हो जाएंगे। तो H आयनों की कंडक्टिविटी HCl के सॉल्यूशन से। अब रही बात आपके इस एसिडेट आयन की, तो यहाँ एक कंपाउंड लिया जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका जब आयनाइजेशन होगा तो ये CH3COO और प्लस Na प्लस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इसकी तुलना में ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन दोनों के सॉल्यूशन से हम यहाँ पे तो लेंगे H आयन और यहाँ से ले लेंगे एसिटेट आयन की तुलनात्मकता, और उसमें से इन दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको उसमें से हम घटा देंगे, तो हमें इस एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप समीकरण में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये इक्वेशन आप इस प्रकार से बनाएं। सबसे पहले आप लैम्डा एम ये HCl की लीजिए, लैम्डा एम HCl एट द इन्फिनाइट, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एम ऑफ H आयन एट इन्फिनाइट प्लस द लैम्डा एम Cl आयन एट द इन्फिनाइट, ये HCl का हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा पदार्थ है NaCl, या फॉर्मेशन ऑफ NaCl होगा ना, क्योंकि Na और Cl आयन मिलके बना लेंगे NaCl। तो अब हम क्या करेंगे, लैम्डा एम ऑफ NaCl एट इन्फिनाइट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम एट द इन्फिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस द लैम्डा एम एट द इन्फिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, ये NaCl से आएगी। उसके बाद फिर सोडियम एसीटेट, तो लैम्डा एम ऑफ CH3COONA एट द इन्फिनाइट इट इज इक्वल टू द लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस द लैम्डा एम एट इन्फिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव आयन, ये सोडियम एसीटेट का हो गया। और फिर जो हमारा लिया गया ये जो एसिड है इसका हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन में, तो लैम्डा एम ऑफ द CH3COOH दैट इज द एसिटिक एसिड एट द इन्फिनाइट, so it will contribute in this way the lambda m here the CH3COO negative plus the lambda m H ion of the H ion at the infinite। तो देखिए ये आपके 1, 2, 3 और 4 ये आपको 4 जो है ना वो अलग अलग सॉल्यूशंस हो गए। अब इन चारों सॉल्यूशन में से किन्हीं 2 सॉल्यूशन का एडिशन करके बाकी के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो अब बन जाएगी। देखिए आपको डिटर्मिनेशन तो यहाँ करना है, हमें इसको डिटरमाइन करना है, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं हो सकता क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम ये 3 अलग अलग जो हमारे मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन है इनकी सहायता से हम इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे।
तो अब इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या बनेगी कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl, ये लैम्डा m हो गया HCl का, ठीक है, प्लस द लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसीटेट द CH3COONA, ये इसके लैम्डा m है, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना आपको कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl, ठीक है। तो इजिकल टू अब हमारे पास में क्या रह जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी m, ये सब यहाँ पे आपको मोलर लगाना है, m बताना है, ऑफ एसिटिक एसिड, ये कंक्लूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कॉमन आइंस है ना, देखिए हमने इन दोनों को तो प्लस करना है और इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में ये सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाती है। तो इसमें से H प्लस Cl आयन आएंगे, राइट, यहाँ पे CH3CO आयन होंगे नेगेटिव और Na पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और NaCl में से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट इन आयनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में अब क्या रह जाएगा कि ये तो सब आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, Cl और H वगैरह, Cl आयन जो है ना वो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, Na आयन भी कैंसिल हो गए। अब सॉल्यूशन में क्या चीज रह जाएगा, CH3COH और H, देखिए ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इसी तरह से Na में ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जो रेस्ट ऑफ आयन कौन से होंगे, एक तो H पॉजिटिव आयन होगा और एक एसिटेट आयन होगा। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से हम इसकी लैम्डा m की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम किस प्रकार से मेजर करें, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है इस कोलराब्स लॉ का कि इसके कंडक्टिविटी हम कैसे मेजर करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन है, इसके डिटर्मिनेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन कोलराब्स के नियम ने हमको ये बता दिया कि इस डिफिकल्टी को आप दूर कर सकते हैं और एक अल्टरनेट प्रोसीजर पर आप इन सब्सटेंस की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन। अब दूसरी देखिए आयनों के अभिगमन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन, हियर इट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट नंबर एक बहुत ही एक नया ये टेक्निकल टर्म है कि उस आयन को जो है ना वो किस प्रकार से हम कंक्लूड करें। तो इस कंक्लूजन के लिए आयन का जो अभिगमनांक है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन is equal to the current carried by it is the carried by either positive or the negative ion, ठीक है, and the total current carried by both the ion, ये तो सेपरेटली हो गया। और उस सॉल्यूशन का हम जो टोटल करंट है, टोटल करंट कैरिड बाय बोथ दी आयन, बोथ का मतलब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया। तो इस इक्वेशन से हम उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये सोडियम आयन का बताइए, तो अब हम जैसे कि ये इसको म्यू से डिनोट करते हैं, द नेगेटिव आयन म्यू इज इक्वल टू here the negative ion of the mu is the transport number separately, और ये जो टोटल है आपका नेगेटिव आयन प्लस द म्यू ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये इज इक्वल टू आपके लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ द नेगेटिव आयन
अपॉन द लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है ये। और जो पॉजिटिव आइन है म्यू प्लस का, अगर आप इसको म्यू प्लस में डिटरमाइन करें तो ये म्यू प्लस प्लस द म्यू प्लस एंड द म्यू नेगेटिव, ठीक है। ये इक्वलेंट किसके हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ द पॉजिटिव आइन अपॉन द लैम्डा इंफिनिटी टोटल। ये आपका टोटल टी से है, तो ये लैम्डा भी आपका टोटल से है, टी से है। तो इस तरह से हम ये आपके ट्रांसपोर्ट नंबर जो है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक विशेषता है। और फाइनल इक्वेशन में इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इंफिनिटी इज इक्वल टू द लैम्डा, ये सी का मतलब यहाँ पर कैटाइन से है, एन ई प्लस द लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एन आइन दैट इज द नेगेटिव आइन अपॉन द एन ए। ये फाइनल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट नंबर की कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। दैट्स ऑल।